Good morning to all of you. Today I am taking your science class, chapter 15, water and its importance. Uh, First chapter, this is in this chapter we will discuss different types the source of water, water availability in the earth, and uses of water, uh, pollution of water, and different states of waters like as water cycle, cloud formation, floods. So let's start. Water available for uses. Approx 3/4 part of the water found in this earth, and only 97% of water have in ocean and sea. Only 3% water is a drinkable water we use for all purpose like as bathing, washing clothes, industries, irrigation of agriculture fields. So mostly part of the water is salty, which is found in all oceans and the seas. Only in this earth have only 3% of water we use as a potable water. मोस्टली जो वाटर है वो है 97% वाटर सॉल्टी है, और 3% वाटर क्या है, वो फ्रेश वाटर है या ड्रिंकेबल वाटर है या पोर्टेबल वाटर है, जिसको हम इरिगेशन में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए उसका हम यूजेस करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स वगैरह, वॉशिंग इक्विपमेंट्स वगैरह, बाथिंग के लिए करते हैं। तो ये सब पर्पज़ से हम उसको यूज़ करते हैं। Uses of water. Second topic is uses of water. Uses of water. First is the agriculture needs. Our country depend upon a lot of the agriculture industries. Farmer rely of water to sustain the agriculture crops such as wheat and paddy. Many a times rainfall is not sufficient for the crops, and the farmers have to use for the artificial watering system referred to as a irrigation, because our India is situated in a south continental of Asia, and in this country rains depend upon a monsoon season. So in sometimes rainfall is not sufficient for the irrigation of the agricultural crops. So mostly farmers use to artificial method for the irrigation. So this is the use of the water in the agriculture fields. Second is industrial needs. Mostly industries are established in the bank of the river, because water is available to easily for the industries. These industries use water for the cleaning of the materials, cooling, generating electricity, raw materials. This is the different process in the industries, and these process when held, because these are used of a lot of the water. Second is personal and domestic needs. We need water to the drink. Water that suitable for the human consumption is called a potable water. जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं पीने के लिए, या जो भी हमारे पर्पस होते हैं डेली डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, उसके लिए जो वाटर यूज़ करते हैं वो पोर्टेबल वाटर होता है। और इसका जो यूज़ करते हैं हम वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए करते हैं, बाथिंग के लिए करते हैं, इक्विपमेंट जो वगैरह होते हैं, जो हमारे किचन्स के जो जार वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हम साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे क्या है, डे टू डे वर्क होते हैं, जिसके लिए हमें क्या होता है, वाटर की बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है। डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर इन नेचर, वाटर एग्जिस्ट इन द
three states. First is liquid, second is gas, and third is solid. In the liquid form, water is available, rain, river, and the sea. Solid form in the water available in the ice, snow, and hail. And the gas state, water is available in the steam and the vapors. Mainly two process. First is evaporation and second is condensations. Water change to one to another form. Like as evaporation, in this process, liquid is converted to vapor. It's called evaporation. जब कोई लिक्विड है वो क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ वाटर. मतलब जब वाटर को हीट करते हैं तो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं. कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन. बिकॉज कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वेपर होते हैं, वेपर्स जो होते हैं वो कूल होकर के फिर से जो है वो वाटर ड्रॉप्स में या वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं. वेपर इज द प्रोसेस बाय विच अ वेपर of a substance is converted into the liquids form is called a condensation. Evaporation and condensation are converted to each other and these are part of the water cycle. Next is a cloud formation. When the temperature of air is increased, air is expanded. Means जब टेम्परेचर जो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एयर क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है. एयर एक्सपेंड होने का मतलब क्या है कि एयर जो है वो डिफरेंट टाइप के गैसों का मिक्सचर है. तो जो डिफरेंट टाइप की गैसेज होती है, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो दूर दूर हो जाते हैं. तो जब दूर दूर होते हैं तो क्या होता है कि जो एयर होती है वो लाइट हो जाती है वेट में और राइज अप हो जाती है ऊपर की तरफ. मतलब एटमॉस्फेयर में जो अपर लेयर होती है वहाँ की तरफ हो जाके सेटल हो जाती है. तो जब सेटल होती है तो क्या होता है कि सेटल होने की ड्यूरेशन में ही उसके साथ क्या होता है कि जो वाटर वेपर होता है वो भी उसके साथ मिक्सअप रहता है. जब वाटर वेपर मिक्सअप रहता है तो वाटर वेपर क्या है कि जैसे ही लाइट एयर के साथ ऊपर जाके सेटल होती है तो वाटर वेपर है वो धीरे धीरे क्या होता है, कूल होना स्टार्ट हो जाता है. जब कूल होना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो कंडेंस होता है डस्ट पार्टिकल के साथ, ठीक है, और जो है मिलियंस ऑफ एटमॉस्फेरिक जो है ड्रॉपलेट्स वहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है. और यही ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में हो जाते हैं. ये क्लस्टर क्या होते हैं कि फ्लोट करते हैं, जो एयर होती है एयर में फ्लोट करते हैं, ठीक है. तो ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. आफ्टर द फ्लोटेशन एयर क्या करते हैं कि जो ड्रॉप्स होते हैं वाटर के, वो एक दूसरे के ऊपर बम्पिंग करते हैं, मतलब कूदते हैं, और कूदने पे एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं और एक क्या करते हैं, एक बड़े से एक बिग ड्रॉप्स वाटर के ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. धीरे धीरे ये जो प्रोसेस होती है वो चलती रहती है और वाटर के ड्रॉप्स आकर के एक दूसरे से ऐड होते जाते हैं और क्या होता है, एक बड़े से क्लाउड का क्या कर लेते हैं वो लोग फॉर्मेशन कर लेते हैं. जब बड़ा सा क्लाउड बन जाता है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि उसका जो वेट हो जाता है वो हैवी हो जाता है, ठीक है. तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो क्लस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से ब्रेक हो करके वो नीचे रेन्स के फॉर्म में आते हैं. तो इस तरीके होता है कि जो वाटर है वो फिर से आकर के अर्थ पे आ जाती है और वो ओशियन में, सी में, रिवर्स में, लैक पॉन्ड्स जो भी हैं वहाँ पे पहुँच जाता है. फिर धीरे धीरे क्या होती है, ये साइक्लिक फॉर्म में फिर कन्वर्ट होता है. इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो ये साइकिल जो है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है. तो वाटर साइकिल इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इन द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ. वाटर साइकिल क्या है, एक साइकिल है जो क्या है, एक मूवमेंट चलता रहता है एटमॉस्फेयर से अर्थ पे और अर्थ से एटमॉस्फेयर से. Floods and the drought is the natural disasters and it is belonging to the water because when too little rain is harmful for the survival of the peoples, animals, and too much rain is as well as harmful for the people and the animals.
Because what is floods? Floods is the become submerged of the ground अंडर द वाटर मीन्स समर्स मतलब कोई भी लैंड का एक पार्ट, ठीक है, सबमर्ज हो जाए, ठीक है, डूब जाए, ठीक है, किसमें, वाटर के नीचे, दिस इज कॉल्ड फ्लड, इसको फ्लड बोलते हैं। ड्यूरेशन द फ्लड, मैनी रिवर्स हैव अ लॉट ऑफ वाटर एंड फॉर्म ऑफ फ्लड। Excessive rainfalls is the formation of the floods. So these floods and rough is a natural disasters. So they lost animals life, they lost the humans life, they loss of the properties. This is the harmful effect of the floods. Next is rough. Sometimes it does not rain for a long time, 1 year, 2 years, several years, and the abnormal long period, insufficient or no rainfall, it's called a drought. मीन्स कि मतलब कुछ समय के लिए अगर कहिए कि रेनफॉल नहीं होती है, तो कहीं कहीं जो होती है रेनफॉल 1 ईयर्स नहीं होती है, 2 ईयर्स नहीं होती है, 1 मंथ नहीं होती है, 2 मंथ नहीं होती है। तो एक जो होता है कि जो वाटर की नीड्स होती है एक नॉर्मली, क्योंकि जो वाटर्स है वो किसी न किसी फॉर्म पे अवेलेबल है इस अर्थ पे, चाहे वो वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल हो, चाहे स्नो के फॉर्म में अवेलेबल हो, चाहे हिल्स के फॉर्म में अवेलेबल हो, मॉइस्चर सॉइल्स जो हमारी एटलीस्ट जो सॉइल होती है उसमें भी मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर अवेलेबल होता है। तो जब क्या होता है रेनफॉल नहीं होती है तो और इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। आप सोचिए कि अगर रेनफॉल नहीं हो रही थी, इवेपोरेशन की प्रोसेस बंद हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है, इवेपोरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो होता क्या है कि जो वाटर होता है वो वेपर बनकर के ऊपर जाता है, ठीक है, वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है और फिर रेन्स के फॉर्म में वो ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं हो रही है, इनसफिशियंट या नो रेनफॉल मतलब रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो होता क्या है कि वो क्या करते हैं, वो ड्राफ्ट का फॉर्म ले लेते हैं, सूखे का फॉर्म ले लेते हैं, और ये क्या होता है एक तरह की क्राइसिस होती है, एक नेचुरल डिजास्टर्स होता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ द फूड जो होता है वो रेट होता है वो भी लो हो जाता है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप की जो डिजीजेज होती हैं वो भी हो जाती है, लोगों को सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है कि फूड की एफिशिएंसी से डिजीजेज उनको हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स है। इन द ड्यूरिंग द फ्लड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज आर कॉज्ड, इज कॉल्ड वाटर बॉर्न डिजीजेज। जो फ्लड्स के ड्यूरेशन में जो डिजीजेज होती है उनको वाटर बॉर्न डिजीजेज बोलते हैं। और इन द सेम टाइम पीपुल किल इन अ लार्ज अमाउंट, मतलब ये कहिए कि जो एपिडेमिक होता है, ठीक है, जो अभी अभी ये कोरोना वायरस पे चल रहा था, इस सीजन पे चला है, 2020 जो पूरा गया है, तो एपिडेमिक सीजन एपिडेमिक था ये, ठीक है, उसको एपिडेमिक बोलेंगे क्योंकि एक लार्ज मतलब एक सेम पीरियड ऑफ टाइम में एक लार्ज पॉपुलेशन को उसने क्या कर दिया था, किल कर दिया था, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एपिडेमिक। तो डिफरेंट टाइप के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी डिफरेंट डिजीज को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, जैसे वाटर से फ्लड से क्या होती है, वाटर बोर्न डिजीज होती है। तो क्लास दिस चैप्टर इज फिनिश, चैप्टर 15 वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। यू हैव एनी डाउट, you have any problem, you call me, you text me. We will meet next topic and next day.